Good morning, students. So let us start today's topic. Today's topic about factors, the factors affecting photosynthesis. Photosynthesis process we have complete its different phases like light reaction, dark reaction. We have completed the structure of chloroplast. We have completed the parts of chloroplast where light reaction going on, where dark reaction going on. We all completed these all points. Now today's topic is mm, last points of this chapter. It is factors affecting photosynthesis. Factors, basically there are a lot of factors which directly or indirectly affect in photosynthesis, like there are some factors which is very important in process of photosynthesis. So things or external or internal factors that affect in photosynthesis. First, we divide factors in two parts. First one is external factor, second one is internal factor. External factor और internal factor. एक्सटर्नल फैक्टर जो बाहर से फैक्टर्स अप्लाई हो रहे हैं, एक्सटर्नल फैक्टर्स, ठीक है, और आता है इंटरनल फैक्टर्स. तो external factors include the availability of sunlight, temperature, carbon dioxide concentration and water. As a plant photosynthesis, external factor में हम क्या ले रहे हैं? Availability of sunlight. सबसे पहले availability of sunlight, second temperature, third carbon dioxide concentration, and four water. There are four external factors which include in process of photosynthesis. In internal factors are depends on the genetic predispositions and growth of the plants. Internal factors में क्या आएगा? Internal internal factors are dependent on the genetic predispositions and the growth of the plants and growth of the plants. ठीक है, जेनेटिक जीन्स के ऊपर डिपेंड करता है, वो जीन्स प्रॉपर एंजाइम्स फॉर्म कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं. ठीक है. फोटोसिंथेसिस इज बेसिकली अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ सेवरल फैक्टर्स, जिसमें इंटरनल एक्सटर्नल दोनों फैक्टर्स आ रहे हैं. द प्लांट फैक्टर्स इंक्लूड number, size, age and orientations of leaves, mesophyll cell, chloroplast, etc. And internal factors में carbon dioxide concentration, amount of chlorophyll, these are factors. So before we start factor, we will discuss what is limiting factors. The Blackmans in 1905 gives a law of limiting factors. Law of limiting factors, it is first time proposed by 1905 by the Blackmans. So it is called Blackmans factor also. According these factors, when this law of limiting factors states that if the chemical process is affected by more than one factor, then rate will be determined by the factors which is nearest to its minimum values. मतलब कोई एक केमिकल रिएक्शन हो रही है, उसमें एक साथ कई फैक्टर्स वर्क कर रहे हैं, तो प्रोसेस जो केमिकल प्रोसेस है, इट विल बी डायरेक्टली अफेक्टेड, वो डायरेक्टली अफेक्टेड होगी इफ़ द फैक्टर्स विच इज़ मिनिमम वैल्यूज़, जो फैक्टर सबसे कम यूज़ हो रहा है. क्लियर स्टूडेंट? यदि कोई केमिकल प्रोसेस है जिसमें कि एक से ज़्यादा फैक्टर्स वर्क कर रहे हैं, अफेक्ट कर रहे हैं, देन इट्स रेट, तो उस रेट को डिटरमाइन किया जा सकता है उस फैक्टर के थ्रू जो कि
मिनिमम वैल्यूज़ के नियर बाय है, जिसका यूज़ सबसे ज़्यादा कम हो रहा है, वो डायरेक्टली उस मिनिमम फैक्टर्स को इंक्रीज़ करके और डिक्रीज़ करके प्रोसेस को कम या ज़्यादा उसकी क्वांटिटी को चेंज कर सकते हैं और प्रोसेस को हम चेंज कर सकते हैं. क्लियर स्टूडेंट? इट इज़ लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर. Again, I will revise law of limiting factor. Law of limiting factors was given by Blackmans in 1905. According this factor, if a chemical process is affected by more than one factor, then its rate will be determined by the factors which is nearest to its minimum values. It is the factor which directly affect the process if its quantity is changed. Like examples we will take. For examples, if photosynthesis process is going on, so a lot of factors will affect photosynthesis process, like green leaves, optimum lights, carbon dioxide concentrations, water, means raw material which is required in process of photosynthesis. But rate of photosynthesis will be affected or will be changed if the factors increase which is use minimize way. उस factors को use करके हम process को increase कर सकते हैं जो minimize use हो रही है. In case of photosynthesis, carbon dioxide volume is always minimized, so we can change rate of photosynthesis by changing concentration of carbon dioxide. So these are the law of limiting factors. Clear? Now second factor is light. Light basically it will be take light factors in two basic points. First one is light quantity, then light intensity and the durations of exposure to light. कितनी लाइट दी जा रही है. तो दो लाइट फैक्टर्स दो तरीके से वर्क करेंगे. एक तो लाइट क्वांटिटी के बेस पर, दूसरा लाइट इंटेंसिटी के बेस पर. एक आ जाएगा लाइट क्वालिटी लाइट क्वालिटी के बेस पर. एक जो लाइट फैक्टर्स है वो दो तरीके से वर्क करेगा. एक लाइट क्वालिटी के बेस पर, सेकंड आएगा लाइट इंटेंसिटी. किस तरीके की लाइट दी जा रही है. ठीक है, तो लाइट क्वालिटी और लाइट इंटेंसिटी. और आएगा ड्यूरेशंस ऑफ एक्सपोजर टू लाइट. कितना ड्यूरेशन हुआ है. ड्यूरेशन ऑफ एक्सपोजर्स टू लाइट. तो इस तरीके से लाइट जो है तीन फैक्टर्स और तीन पॉइंट्स पर वर्क करेगी. क्लियर स्टूडेंट? Clear? There is linear relationship between incident lights and carbon dioxide fixation rate at low light intensity. यहाँ पर ये दिया हुआ है, देखो ये रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस ग्राफ के थ्रू एक्सप्लेन किया है. फिगर it is 15.10 where x or y, there are two axes x or y. One is show rate of photosynthesis, other is show light intensity. तो यहाँ पर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस जैसे जैसे इंक्रीज होती जा रही है ना, और लाइट इंटेंसिटी इंक्रीज हो जाती जा रही है, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस भी इंक्रीज होता जा रहा है. एक कंडीशन के बाद फिर ये स्टडी हो जाएगा. ठीक है, तो ये फिगर क्या शो कर रहा है कि लाइट ऑफ फोटोसिंथेसिस और रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, लाइट इंटेंसिटी और रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस दोनों एक साथ वर्क कर रहे हैं. जैसे जैसे लाइट इंटेंसिटी बढ़ती जाएगी, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बढ़ती जाएगी, बट आफ्टर सम टाइम इट विल बिकम स्टडी. क्लियर? तो देर आर लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन इंसिडेंट लाइट and carbon dioxide fixation rate at low light intensity. At higher light intensity, gradually the rate does not show further increase or other factors become limiting factor. लेकिन after some time जब
लाइट इंटेंसिटी से रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस नहीं इंक्रीज हो रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि देयर इज अदर लिमिटिंग फैक्टर, अब कोई दूसरा लिमिटिंग फैक्टर हो गया है. What is interesting to note that the light saturations occur 10% of full sunlight. Hence, except for plants in shade or in dense forest, light is rarely a limiting factor. हमारे नेचर में लाइट जो है कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन के लिए लिमिटिंग फैक्टर नहीं है. इंक्रीज इन इंसिडेंट लाइट्स बियॉन्ड अ पॉइंट कॉजेज ब्रेकडाउन ऑफ क्लोरोफिल. यदि धीरे धीरे लाइट इंटेंसिटी को बढ़ाते जाएंगे तो एक समय तक तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बढ़ता जाएगा, बट फिर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस डिक्रीज होने लगेगा और स्टडी चल जाएगा. और वो ऐसा क्यों होता है? बिकॉज ब्रेकडाउन ऑफ क्लोरोफिल एंड डिक्रीज इन फोटोसिंथेसिस. सो दिस इज द लाइट इंटेंसिटी. सेकेंड फैक्टर्स है कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन. कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन. कार्बन डाइऑक्साइड इज अ major limiting factor for photosynthesis. This concentration of carbon dioxide is very low in atmosphere. हमारे एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज कितना है? 0.03% से लेकर 0.04%, इतना कम है. ठीक है, तो इंक्रीज इन कंसनट्रेशन अप टू 0.5% कॉज इन इंक्रीज कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन. 0.03 से यदि हम कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन 0.05 तक करें तो ये हमारा फोटोसिंथेसिस को इंक्रीज करने में और कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन में हेल्प करेगा. ठीक है, इसके बाद बियॉन्ड दिस लेवल कैन बिकम डैमेजिंग ओवर लॉन्गर पीरियड. क्लियर? C3C4 प्लांट्स जो अभी हमने C3C4 प्लांट्स में स्टडी किया हुआ है, C3 and C4 प्लांट्स रिस्पॉन्ड डिफरेंटली टू कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन. C3C4 प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करने से उनके रिस्पॉन्सेज डिफरेंट हैं. एट लो लाइट कंडीशंस नाइदर ग्रुप रिस्पॉन्स टू हाई कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन. एट हाई लाइट इंटेंसिटी बोथ C3 and C4 प्लांट्स शो इंक्रीज. लो लाइट में तो क्या होता है? लो लाइट कंडीशंस में, ठीक है, नाइदर ग्रुप रिस्पॉन्स टू हाई कार्बन डाइऑक्साइड कंडीशंस, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड कंडीशंस का मतलब कोई रिस्पॉन्स नहीं है. लेकिन हाई लाइट इंटेंसिटी में C3C4 प्लांट्स क्या शो कर रहे हैं? उनमें रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस वो ग्रेजुअली इंक्रीज हो रहा है. व्हाट इज इम्पोर्टेंट टू नोट दैट C4 plants show saturations about 360 UL liter, while C3 responds to increased carbon dioxide concentration and saturation is also seen 400 mu liter -1. Thus current ability of carbon dioxide level is limiting factor. तो current टाइम पर हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड का जो लेवल है वो लिमिटिंग फैक्टर है C3 प्लांट्स के लिए. ठीक है, C3 प्लांट्स रिस्पॉन्स टू हायर कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन बाय शोइंग इंक्रीज रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस. तो C3 प्लांट्स जो हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन को हाई करने से फोटोसिंथेसिस को वो इंक्रीज रेट शो करते हैं. इट इज़ हायर प्रोडक्टिविटी हैज़ बीन यूज्ड फॉर सम ग्रीन हाउस क्रॉप. इसीलिए कुछ ग्रीन हाउस क्रॉप में कि प्रोडक्टिविटी ज़्यादा करने के लिए उसमें क्या किया जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज किया जाता है. सच एज टोमेटोज, बेल पेपर, they are allowed to grow in carbon dioxide enriched atmosphere that leads to higher yield. So this is carbon dioxide concentration. Then temperature का क्या है? Dark reaction is a totally enzymatic and temperature controlled reaction. So light reaction is a temperature sensitive reaction that is affected to much lesser contents. C4 plants responds to high temperature and show high rate of photosynthesis, while C3 plants have much lower temperature optimum. C4 plants के लिए एक high temperature की ज़रूरत होती है as compared to C3 plants. ठीक है, क्योंकि C4 प्लांट्स आपने स्टडी किया है कि उसकी लीव्स स्पेशल टाइप की होती हैं, सक्कन स्टोमेटा होते हैं और स्टोमेटा अंदर बंडल शीट से कवर रहते हैं. द टेम्परेचर
Optimum for photosynthesis in different plants also depends on the habitat they are adapted to. Tropical plants have high temperature optimum than the plants adapted to temperature. तो temperature तो कौन कौन से factors हो गए हैं? Factors light intensity, light, second है carbon dioxide, third temperature, fourth water. These are the factors which affect rate of photosynthesis. Water is raw material, ठीक है. तो water भी हमेशा light reaction का reactants है. Light reaction में basically क्या हो रहा है? Water breakdown हो रहा है. तो water is a reactant of, it is reactants in light reaction. तो वाटर जब ये रिएक्टेंट्स की तरह से वर्क कर रहा है तो ऑब्वियसली वाटर की रिक्वायरमेंट इम्पोर्टेंट है. इवन बिसाइड्स वाटर स्ट्रेस ऑल्सो मेक्स लीव्स विल्ड. यदि वाटर की कमी होती है तो लीव्स अपने आप में सूखने लगती है, ठीक है, सिकुड़ जाती है, विल्ट हो जाती है. सो दिस इज़ द रिडक्शन ऑफ सरफेस एरिया ऑफ लीव्स. और ये इससे क्या होगा कि वो सरफेस एरिया उसका कैसा हो जाएगा? रिड्यूस हो जाएगा एंड मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ भी उससे रिड्यूस हो जाएगी. सो दिस इज़ द वाटर. नाउ वी विल गिव यू सम बेसिक और सम इम्पोर्टेंट point and their difference also. So here we are taking 3 points. First one is photorespiration. Second term photosynthesis. And third term true respiration. ये तीनों में क्या बेसिक डिफरेंस है? फोटो रेस्पिरेशन, इट इज ऑकर इन फोटो रेस्पिरेशन हमेशा ग्रीन किस्मों तक ग्रीन प्लांट्स में लाइट में होता है. फोटोसिंथेसिस ऑकर इन ग्रीन प्लांट्स इन लाइट. और ट्रू रेस्पिरेशन इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन लाइट एंड डार्क बोथ. तो ये तीनों का बेसिक फर्स्ट डेफिनेशंस पॉइंट हो गया. सेकंड, फोटो रेस्पिरेशन, there are primary substrate is glucose form ribulose biphosphate. ठीक है. फोटोसिंथेसिस में सबस्ट्रेटम इज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. ट्रू रेस्पिरेशन में सबस्ट्रेटम आर कार्बोहाइड्रेट. ठीक है. फोटो रेस्पिरेशन में मोस्टली ऑकर इन C3 प्लांट्स. फोटोसिंथेसिस ऑकर इन क्लोरोप्लास्ट. True respiration occur in all living organisms. So, photorespiration, hydrogen peroxide is formed during this process. Photorespiration में क्या फॉर्म होता है? Photorespiration में it is H2 हाइड्रोजन peroxide, H2O2 फॉर्म होता है. फोटोसिंथेसिस में क्या बन रहा है? ऑक्सीजन रिलीज हो रही है. ठीक है. और इसमें क्या हो रहा है? ट्रू रेस्पिरेशन में क्या बन रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म हो रही है. ठीक है. फोटोफॉस्फोरेशन डज नॉट ऑकर. फोटो रेस्पिरेशन में कोई ATP, नो फॉर्मेशन ऑफ ATP. इसमें ATP भी फॉर्म हो रही है. ठीक है. और इसमें क्या हो रहा है? ऑक्सीडेटिव फोटोफॉस्फोरिलेशन हो रहा है. ऑक्सीडेटिव फोटोफॉस्फोरिलेशन. सो देयर आर सम बेसिक डिफरेंसेस. क्लियर. अब एक और पाथवे होता है, मेटाबॉलिक पाथवे. इट इज़ कॉल्ड एज कैम पाथवे. कौन सा पाथवे है? CAM, कैम पाथवे. इट इज़ मेटाबॉलिक पाथवे. ठीक है. इस पाथवे में क्या होता है? जब स्टोमेटा ओपन होते हैं, इन डार्क रिएक्शन व्हेन द स्टोमेटा आर ओपन, द कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइंड विद फास्फोइनॉल पायरुविक एसिड टू फॉर्म ऑक्सलोएसिटिक एसिड इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम्स PEP कार्बोक्सिलेज. ठीक है. फिर उसके बाद उसमें एसिडिफिकेशन होगा. अब ऑक्सलोएसिटिक एसिड है, ये कन्वर्ट हो जाएगा मैलिक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम्स की प्रेजेंस में कन्वर्ट हो जाएगा और क्या बना देगा? ऑक्सलोएसिटिक एसिड NADH की प्रेजेंस में मैलिक एसिड बना देगा.
ठीक है. द मैलिक एसिड produced in a dark reaction result of acidification and it's stored in वैक्यूल्स में स्टोर हो जाएगा. ठीक है. थर्ड क्या होगा? डी एसिडिफिकेशन मतलब दिन के टाइम पर इन लाइट ड्यूरिंग द डे टाइम व्हेन द स्टोमेटा आर क्लोज malic acid is decarboxylate to produce pyruvic acid and evolve carbon dioxide. This process is called deacidification. मैलिक एसिड से deacidification हुआ. pyruvic acid may be oxidized to carbon dioxide by Krebs cycle or may be reconverted to phosphoenol pyruvic acid. Carbon dioxide released by deacidification and accepted by ribulose biphosphate and fixed to carboxyhydrate by C3 साइकिल. तो C4 साइकिल एक स्पेसिफिक साइकिल है. ठीक है. लिमिटिंग फैक्टर्स आप लोग रीड कर चुके हो. एक्सटर्नल एनवायरमेंटल फैक्टर्स में लाइट आ गया, जिसमें लाइट इंटेंसिटी है, लाइट क्वालिटी है, ड्यूरेशन ऑफ लाइट है. ठीक है. ये तीन लाइट के तीन फेजेस अलग अलग प्रोसेस को अफेक्ट कर रहे हैं. क्लियर. अब इसके बाद आता है नेक्स्ट इंटरनल फैक्टर्स. इंटरनल फैक्टर्स में बेसिकली इंटरनल फैक्टर्स में जेनेटिक कॉम्बिनेशंस आ गया. यदि जेनेटिक कॉम्बिनेशंस ठीक है, वो सब एंजाइम्स है जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को इम्प्रूव कर रहे हैं, वो एंजाइम्स ईजिली फॉर्म हो रहे हैं, कोई इसमें डिफेक्ट नहीं है, तो वो प्रोसेस अच्छे से होगी. इंटरनल फैक्टर में क्लोरोप्लास्ट की क्वांटिटी हो गई. यदि लीव्स में क्लोरोप्लास्ट प्रॉपर क्वांटिटी में है तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस ठीक से होगी. क्लियर बेटा. इसके बाद आता है एक्टिमुलेशन ऑक्सीजन. ऑक्सीजन जो है वो फोटोसिंथेसिस को रोकता है. ये हम ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाएंगे तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस इनहेबिट होगी, क्योंकि ऑक्सीजन हमेशा इसमें प्रोड्यूस कर रहा है. क्लियर. सो दीज आर द सम फैक्टर्स. सिग्निफिकेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस ऑलरेडी आपको पता है कि एक हमारे इकोसिस्टम को बैलेंस करने के लिए, और ये एक बायोस्फीयर की एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस. ये एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड को कंज्यूम कर रही है और कार्बोहाइड्रेट्स और मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन प्रोवाइड करती है. ठीक है. ग्रीन प्लांट्स इसमें कंज्यूमर हैं. ग्रीन प्लांट्स के ऊपर जो डिपेंड कर रहे हैं ऑर्गेनिजम्स, दे आर हेटेरोट्रॉपिक इन नेचर और दे आर इंक्लूड इन कंज्यूमर्स ट्रॉपिकल लेवल. अब कंज्यूमर्स से प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शरी कंज्यूमर्स इस तरीके से आते हैं. एंड फोटोसिंथेसिस प्रोसेस एक ऐसी प्रोसेस है जो सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन लिबरेट करती है. ठीक है. दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए तो कॉन्टीन्यूसली प्लांट्स के थ्रू होने वाली प्रोसेस है, जिसमें कि क्लोरोप्लास्ट होता है, और ये कॉन्टीन्यूसली हमारे एनवायरनमेंट को प्यूरिफाइड भी कर रही है. ठीक है. फोटोसिंथेसिस से कार्बोहाइड्रेट बन रहा है तो ये रॉ मटेरियल भी प्रोवाइड करती है. रेस्पिरेशन के लिए ये एक रॉ मटेरियल भी है. सो दीज आर द सम इम्पोर्टेंट points about this topic. Now today's we will finish photosynthesis, where photosynthesis we have read in photosynthesis terms. Photosynthesis, their early experiment, their structure of chloroplast. Okay student, फिर step of photosynthesis you have read light reaction. Light reactions में basically cyclic photophosphorylation, non-cyclic photophosphorylation, light harvesting complex. Then you have read P 700 wavelength light, P 680 wavelength light. Then light reaction, dark reaction, PS1 cycle, PS2 cycle. Then especially dark reaction, fixation of carbon dioxide means Calvin cycle, and C4 pathway where we are using French anatomy of leaves. So these are the basic points of this chapter. I hope student you understood these all chapter, and next try you already understood this chapter student. If you have any problem you can discuss me. Thank you student. Have a nice day.